Hello everyone, my name is Ananya, and today we are going to learn about an important chapter in Business Studies Class 12th, which is controlling. Now, this is the first video on my channel, and I'm actually hoping and I'm going to keep this channel very commerce specific. So, today we're going to start off with business studies. It's the first video on my channel. We're going to start off with business studies. The first chapter that we're covering today is controlling. Now this is gonna be a one shot video, so I'm just gonna try and मैं इसमें जितनी हो सके उतने टॉपिक्स में कवर करना ट्राई करूंगी so that this can be a very board specific one shot के everything you learn here अगर आप कुछ भी सुन रहे हो if you're even taking notes it is enough for you to draft your own answers है कि आप उसे लिख पाओ. So when I say the word controlling, what exactly comes into your mind? सिंपल एज अ लेमैन जब मैं कंट्रोलिंग वर्ड का यूज करती हूँ आपको क्या आता है? कंट्रोलिंग मीन्स कि किसी चीज पे कंट्रोल करना, हक जमाना, राइट? किसी चीज को हम अपने कब्जे में करें, किसी चीज के हम आउटकम्स हम डिसाइड करें, हमारे हाथ में हो. ठीक है. सो इन मैनेजमेंट it is somewhat very similar, but before we get into that let's understand exactly management function क्या है. So management function is basically there are a set of five functions, and these five functions they prevail across every organization at every level, and इट इज वेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल. मतलब आप अपने अंदर भी ये स्टेजेस आपको फील जब आप खुद को मैनेज कर रहे हो आप ये फंक्शंस आप परफॉर्म करोगे. इवन व्हेन यू आर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आप ये फंक्शंस ही परफॉर्म करोगे. एंड इन सीबीएसई बोर्ड हर एक फंक्शन के लिए एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर दिया गया है. सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ दिस इज मोर ऑफ अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी function if you can say that. So हम इसके साथ start करें. If you want you can comment below and मैं इसके और भी and जो लेकिन बाकी functions है मैं उस पे भी वीडियो मैं डालूंगी. Okay, so let's understand कि ये functions है क्या. So these मैं लिख देती हूँ functions. सबसे पहला we have planning. Number 2 organizing. Number 3 staffing. Sorry P लिख दिया मैंने. Number 4 directing. Number 5 controlling. Now most of you will ask why is it कि मैंने controlling के साथ video start किया and not planning, because when we're going to discuss this further, but the relationship between controlling and planning it's going to be a full circle moment. So even if you start with controlling or you finish with planning, it is sort of going to be the same क्योंकि ये बहुत ही इन दोनों के बीच में जो को रिलेशन है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. सो मैं अभी आपको कंट्रोलिंग का डेफिनेशन बताती हूँ. कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान परफॉर्मेंस. ठीक है. सपोज आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस सोचा है कि मैं सपोज आपका ये सेल्स टारगेट है कि मैं अपने प्रोडक्ट का 10,000 यूनिट बेचूंगा. ठीक है. ये आपका है प्लान परफॉर्मेंस. नाउ इन रियलिटी आपने बेचे सिर्फ 8,000 यूनिट. ये है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब इसके बीच में जो डेविएशन है मतलब कि एक डिफरेंस है, या तो इसके बीच में एक एक्सेस हो सकता है या तो डेफिशिएट हो सकता है या तो इट कैन स्ट्राइक इन इक्विलिब्रियम. बट इधर हमको दिख रहा है कि 2,000 यूनिट का डेफिशिएट है, कि 2,000 यूनिट नहीं बिक पाए हमसे. नाउ कंट्रोलिंग इज द काइंड ऑफ फंक्शन कि वो ये स्टडी करेगा, वो ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये 2,000 यूनिट्स नहीं बिक पाए. ठीक है. So this is sort of the meaning. Now
If there is any difference or deviation, then controlling finds the reason for such difference and takes corrective measures or action to stop those reasons, so that in the future there is a match between an actual and the planned performance. now जैसे मैंने आपको बोला कि वहां पे 2000 का डेफिशिएट था, अभी कंट्रोलिंग पूरा एनालाइज करेगा कि वाई, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, why, how, when, all the the primary question, the W वाले questions. एंड जब वो ये क्वेश्चन पूछता है, वो समझता है कि why this happened, it will take corrective measures as to कि next time ये सेम चीज ना हो. ओके सो आपको समझना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो कि स्टडिंग के क्यों हुई है कोई चीज, एंड ऑल्सो इंटरप्रिटिंग के या एक करेक्टिव मेजर लेना कि ये चीज आगे भी ना हो. ठीक है, these are different definition by different authors. Now what you can do is कि आप इनमें से कोई भी याद रख सकते हो, and when you're starting your answer you can add this one line और आप ये definition ऊपर add कर सकते हो. Suppose आपको question आए कि what is planning, what are the characteristics of planning or the importance of planning. आप first off when you start your answer आप उसका एक definition लिखो कि what is the definition of planning, what do you mean by planning. ठीक है, so you can use any of these definitions if you want, क्योंकि जब एक एग्जाम, आपका जो एग्जाम जो चेक करेगा, आपका जो पेपर चेक करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो वो एक्चुअली स्किम करेगा एंड फर्स्ट लाइन उसके अटेंशन में ज्यादा आएगी. ठीक है, क्योंकि वो एकदम प्राइमरी लाइन है आपकी. ठीक है, तो अगर आप ये लाइन लिख रहे हो तो उसको ना थोड़ा सा क्रक्स पता लग रहा है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, उसको उनको पता लगना चाहिए कि हाँ बच्चे को आता है. ठीक है, सो यू कैन रेफर टू डीज और आप ये इनिशियली लिख सकते हो, फिर आप बैठ के एक्सप्लेन करो, आप उन्हें एग्जाम्पल दो, इंस्टेंसेस दो. ठीक है, अब आई लाइक टू स्टार्ट विद दिस कि कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन, जो मैंने आपको अभी इनिशियली भी बोला था. एंड आप लोग पूछोगे कि मैनेजमेंट में हमको ये लूप दिखाया गया है एंड वी यूजुअली स्टार्ट ऑफ विद प्लानिंग, देन वी कम ओवर टू ऑर्गेनाइजिंग कि हम वी मेक श्योर दैट एवरीवन एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. हम स्टाफिंग का ध्यान रखते हैं कि एक पोजीशन में वही बंदा बैठा है एट द राइट टाइम. डायरेक्टिंग हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी everyone who is involved, may it be the equipment or may it be the people or the human resources, all of them are directed towards the same objective goals. फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा लास्ट फंक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग. लेकिन ये लास्ट फंक्शन है ही नहीं. ठीक है, बिकॉज this function brings back the management cycle back to planning. ठीक है, it is not the last function. ठीक है, the controlling process helps in formulating future plans in the light of problem thus identified, helps in future planning. That is कि controlling function में suppose उन्होंने 3 problems identify की. ठीक है, एंड इस तीनों के लिए उन्होंने मेजर्स लिए, करेक्टिव मेजर्स लिए. ठीक है, एंड नाउ जब नेक्स्ट टाइम प्लानिंग होगी, दिस इज गना इम्पैक्ट कि ये सेम मिस्टेक्स या ऐसी रिलेटेड मिस्टेक्स वापस ना की जाए. सो इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन. नाउ व्हाट आर द नेचर्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग. सबसे पहला, controlling is a goal oriented function. एंड ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहे हो, बिकॉज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके माइंड में वो सब रजिस्टर भी हो रहा है, एंड लेटर अगर आप यू वांट टू कम बैक, यू डोंट हैव टू कम बैक टू दिस वीडियो, यू कैन इजीली जस्ट गो थ्रू योर नोट्स एंड आपको सब स्ट्राइक बैक होने लगेगा. ठीक है, नाउ व्हाई डू यू थिंक इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. आपको क्यों लगता है? Controlling makes sure everyone follows the plan or work is accomplished as per the plan, and plan always aims at achieving organization goals. So जब मैं आपको ये goal oriented बोलती हूँ,
यू शुड रिमेंबर कि प्लानिंग भी जो है, प्लानिंग इज अगेन अ वेरी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग का भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और कंट्रोलिंग का, वो काफी हद तक सेम होने वाले हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग जो एक फंक्शन होता है वो मेक श्योर करता है कि हर कोई एम्प्लॉय, एवरी रिसोर्स इज एट वर्क एंड एवरी रिसोर्स इज वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल which was set off, or which was set up initially by the planning process. ठीक है। सेकेंड, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। व्हाट डू यू थिंक बाय परवेसिव? एक तो परवेसिव, आप ना ये जो वर्ड है आप याद रख लो, बिकॉज अक्रॉस एवरी फंक्शन, एवरी चैप्टर जो आप देखोगे, हर एक फंक्शन का जो इंपॉर्टेंस होगा, यू विल फाइंड दिस वर्ड परवेसिव। सो अगर आपको किसी भी है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग, कुछ भी आपका फर्स्ट ये लिख देना कि दिस फंक्शन इज अ परवेसिव फंक्शन। दिस वे योर एक मार्क इज सिक्योर्ड, आपने एक मार्क इधर ही जीत लिया। ठीक है। कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स बट ऑल्सो फॉर मैनेजर्स वर्किंग एट एवरी सिंगल लेवल, मे इट बी टॉप, मिडिल और इवन ऑपरेशनल या लोअर। सब कंट्रोलिंग फंक्शन यूज करते हैं। इट इज नॉट लिमिटेड कि सिर्फ अपर वाले ही यूज करते हैं, दैट ओनली दे हैव द एबिलिटी और दे हैव द अथॉरिटी टू एम्प्लॉय करेक्टिव प्लान्स। ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। एंड बाय कोई भी आई मीन कोई भी, हर मैनेजर करते हैं, हर मैनेजमेंट लेवल करता है, हर एक एम्प्लॉय ये करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। लाइक आई सेड, जो जो अभी मैंने पहले बोला था ना, नॉट द लास्ट फंक्शन, दिस इज रिलेटेड टू दैट, नॉट द लास्ट फंक्शन। ठीक है। कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम जॉब, दिस इज, वो एक बार का जॉब नहीं है, वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो एक पूरा लूप जैसा प्रोसेस है। वो एक बार एक चीज खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है, एंड द मोमेंट ये सर्कल खत्म होता है, दे इमीडिएटली मूव आउट टू द फर्स्ट फंक्शन, वो वापस से होता रहता है। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है। जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप होके बंद नहीं हुई है, तब तक ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है। So let's go through this one more time. It is a goal-oriented function, it is a pervasive function, and it is a continuous function. Another tip, you can keep this in mind. जब भी आप like आपने सपोज, एंड ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स कि आपके पास एग्जाम में टाइम भी है। ठीक है। तो सपोज अगर आपका एग्जाम एग्जाम तो नहीं, मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया एंड यू हैव इनफ टाइम, क्योंकि ये सिर्फ 3 है। ठीक है। तो आपने डेफिनेशन लिख दिया, आपने इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख दिया, showing that this particular feature or this particular nature of the function is at work, वैसा एक आपने इंस्टेंस दिखा दिया। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है ये सब करने के बाद, इसका मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है कि आपको एक फाइनल क्रक्स दे देना कि इससे पहले कि वो एग्जामिनर आपकी ये सब कथा पढ़ पाए, आप उसको एक माइंड मैप बना दो कि फंक्शंस, वेट, सॉरी, ओ, कि सपोज आपने ऐसे लिखा है कि फंक्शंस, इधर आपने लिख दिया परवेसिव, इधर आपने लिख दिया गोल ओरिएंटेड, इधर आपने लिख दिया कंटिन्यूस। वो इतने में ही इंप्रेस हो जाएगा, वो बोलेगा अरे वाह इतनी मेहनत कर ली है। ठीक है। तो यू कैन कंसिडर डूइंग दैट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आप करोगे अगेन, आप बहुत अच्छा, बहुत प्रेजेंटेबल लगोगे, बहुत ही एक क्रक्स मिल जाएगा उन्हें। एंड एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू डोंट मेक उस एग्जामिनर का दिन हार्ड बाय अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है और उसको ऑलरेडी वो चिढ़ गया, आप ये इतना सा बना दो, थोड़ा सा खुश हो जाएगा। ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, वाई इज इट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग को इतना एम्फोसिस दिया जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है? फर्स्ट, इट हेल्प्स अचीविंग गोल्स, helps in achieving goals. Sorry, I'm थोड़ा nervous. This is my first video. Hmm.
helps in achieving goals. What kind of goals, you may ask? Organization goals. ठीक है. कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज है, ऑल द एक्टिविटीज, ऑनगोइंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर मूव टुवर्ड्स द सेम गोल्स, द ऑर्गेनाइजेशन गोल. कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट नहीं पकड़ के बैठा है, कोई भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं कर रहा है. सबको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स काम करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स काम करना चाहिए. ठीक है. अगर इन केस कोई भी डिविएशन मिल रहा है, कोई भी ऐसा डिस्क्रिपेंसी मिल रही है, ठीक है, करेक्टिव एक्शन नीड्स टू बी टेकन टू ब्रिंग बैक दीज एक्टिविटीज ऑन टू द राइट पाथ. व्हाट इज द राइट पाथ? गोल वाला पाथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल वाला पाथ. ठीक है. when all the activities are going according to the plan, then automatically this will direct into the achievement of organization goal. ठीक है. सबसे प्राइमरी रीजन आपको लगना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. आई थिंक व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, आपको पहला शब्द ही आपको ये सिखाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. एंड सपोज अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको बीबीए की तरफ जाना है या बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें भी ये सेम सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, उधर भी आपको यही मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है. फिर है judging accuracy of standards. ठीक है. अ गुड कंट्रोल सिस्टम. सपोज आप एक मैनेजर हो, आपने आपकी टीम को, सपोज आपके पास 5 काम थे, आपकी टीम में 5 लोग हैं, आपने सबको डेलीगेट कर दिया एक एक काम. ठीक है. आपने सबको बोला कि तुम ये संभालोगे, तुम ये संभालोगे, तुम ये संभालोगे. ठीक है. आपने सब कर तो दिया है, आपने काम डेलीगेट कर दिया, आपने सबको बोल दिया कि कैसे करना है. नाउ जब आपके पास वो लोग अपना काम करके आपको प्रेजेंट करते हैं, देयर मस्ट बी अ मेट्रिक सिस्टम, एंड इफ नॉट अ मेट्रिक सिस्टम, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एक कंट्रोल सिस्टम जिससे आप चेक कर रहे हो वेदर काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वेदर ये काम इज एक्चुअली टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है. तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ते हैं, एंड ये स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी, मतलब ये स्टैंडर्ड्स जो सेट होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, एंड वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली सेट होने चाहिए. ठीक है. एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम, प्लीज रिमेंबर दिस, एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम. एक efficient control system carefully checks on changes taking place in environment and organization and helps review standards in the light of such changes. Suppose कोई भी change आए आपके environment में या आपके organization में, तो जब आपका एक control system है, वो ये check करता है अच्छे से and accurately, वो check करता है कि ये exactly क्या है, कैसे है, एंड इसके लिए आप अपने स्टैंडर्ड्स को अच्छे से रिव्यू और रिवाइज कर सकते हैं कि इन ये जो चेंज हो रहे हैं, क्या आपके जो स्टैंडर्ड्स है, क्या आपने जो रिव्यू प्रोसीजर है, इज इट वर्किंग एक्यूरेटली, इज इट एक्चुअली इफेक्टिव, वैसे. ठीक है. थर्ड है मेकिंग यूज ऑफ एफिशिएंट रिसोर्सेस. ठीक है. आपने अभी ट्रैफिक सिग्नल को देखा है. ठीक है. ट्रैफिक सिग्नल में लाल, येलो, ग्रीन. रेड मीन्स के यू हैव टू स्टॉप, येलो मीन्स कि आपको वेट करना पड़ेगा, ग्रीन मीन्स यू कैन गो हेड, आपको एक गो हेड मिल जाता है. ठीक है. तो सपोज एक ट्रैफिक सिग्नल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड ये ट्रैफिक सिग्नल मेक श्योर करता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द राइट ट्रैक, कि ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू
जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसा क्यों? सो दैट ये जो रिसोर्सेज है ये बिना बात वेस्ट ना हो, हम इसे ऑप्टिमली यूज कर पाए, इसको एफिशिएंटली यूज कर पाए। ठीक है, कि हम इनका 100% ले सकते हैं, हम इनको 100% तरीके से यूज कर सकते हैं अच्छे से, कि हमको इन पे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। 4, improving employee मोटिवेशन। ठीक है, तो अब मैंने जैसे इधर बोला था इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम गोल्स और स्टैंडर्ड्स भी प्रिस्क्राइब करता है फॉर अप्रेजल। एम्प्लॉयज के लिए ये प्रिस्क्राइब करता है कि क्या गोल्स है, क्या स्टैंडर्ड्स है, अंडर विच, इन स्टैंडर्ड्स के अंडर क्या किसी को अप्रेजल मिलना चाहिए, क्या किसी को एक प्रमोशन मिलना चाहिए, वैसे। ठीक है। नाउ एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट्स को वेल इन एडवांस उनको उनको पता होता है कि ये कैसा सिस्टम है। ठीक है, तो अगर ये सपोज ये एक अच्छा सिस्टम है, इट गाइड्स द एम्प्लॉयज टू कम आउट विद देयर प्रॉब्लम्स। दिस ये जो एक फ्री कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है, एंड केयर मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, लेट्स मूव ओवर टू द फिफ्थ। ये टोटल 6 है। ठीक है, आप अगर इन्हें याद कर सकते याद कर लो। एंड आई ऑलवेज से दिस के सपोज आपके 5 मार्कर है, 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, जितने भी क्वेश्चन है आपके, जितने मार्क्स है वो क्वेश्चन है। सपोज इट्स अ 5 मार्कर, आई ऑलवेज से n+1। सपोज ये 5 है, तो आप 5 अच्छे से डिस्क्राइब करके पॉइंट लिखो, प्लस एक एडिशनल पॉइंट भी लिखो। सपोज 5 है तो इंस्टेड ऑफ 5 पॉइंट राइट 6 पॉइंट्स, सो दैट अगर आपके ना किसी एक पॉइंट में अगर आपका मार्क गया भी होगा ना, आपको दूसरे में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज एन एडिशनल, दिस इज ऑलवेज योर एडिशनल n+1। ठीक है, ये आपका एडिशनल है कि ये एक जस्ट इन केस, अगर कोई गलत निकल गया तो ये है। ठीक है, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लिख देती हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल जो सपोज आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम है, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, एंड if this is like an effective controlling system, it keeps आपके जितने भी आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज है, वो आप उनको यू आर कीपिंग देम इन चेक। ठीक है, आप मेक श्योर करते हो कि वो बहुत ही, वो हर एक फंक्शन जो भी उन्हें दिया जाए, जो भी उन्हें काम दिया जाए, वो उसे एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, शार्प कंट्रोल ओवर। ठीक है, अगर आपने सपोज अगर आप इन पे शार्प कंट्रोल देखते हो, तो यू कैन ऑल्सो लाइक डिटेक्ट, या आप चेक कर सकते हो अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर कोई डिसऑनेस्ट हो रहा है। ठीक है, एंड अगर ये कंट्रोल मॉनिटर स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, तो फिर ठीक है, तो अगर ये सपोज अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉनिटर हो, एम्प्लॉय का जो काम है ऑन कंप्यूटर मॉनिटर, इट विल ब्रिंग मोर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सपोज आपका एक मैनेजर है, वो आपको बोलता है कि ये प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, तो वो बोलता है सर प्रोडक्शन सारे वर्कर का तो है, लेकिन 10 से 20 यूनिट का डिविएशन रह रहा है। ठीक है, उसे पता लगा है, तो फिर आप एज अ मैनेजर आप बोलोगे कि ठीक है, आप फिर रिड्यूस कर दो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय 20 यूनिट्स। ठीक है, दिस आप ऑर्डर और डिसिप्लिन आप सब मेंटेन करके रख रहे हो। ठीक है, देन 6 इज facilitates coordination in action। जो कंट्रोल होता है, इट अगेन लाइक आई सेड, अचीवमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नाउ आपका सपोज controlling when the function is at work, it helps maintain the equilibrium between means and end। ठीक है,
ये फंक्शन मेक श्योर करता है कि प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर्स इज मेंटेन प्रॉपरली. ठीक है. All departments are controlled according to predetermined standards which are well coordinated with one another. Control provides unity of direction. को समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है. जब भी कोई काम हो रहा है तो कंट्रोलिंग मेक श्योर करता है कि जो काम हो रहा है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में चला है, उसके आसपास के या बाकी फैक्टर जितने भी हो वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं एंड वो भी एक करेक्ट पाथ में वो अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं. ठीक है. सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है काम का, कोई काम हैपेजेडली नहीं हो रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट वी गो ओवर टू द रिलेशनशिप बिटवीन planning and controlling. So now we have relationship between planning and controlling. Now to understand this relationship, आप ना ये चीज समझ लो that planning and controlling they're like twins, like जो inseparable twins नहीं होते वो वैसे है. ठीक है. क्योंकि जो प्लानिंग है कंट्रोलिंग है दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, बहुत ही क्लोज नेट रिलेशनशिप है दोनों का. ठीक है. तो we have like 4 points. इन 4 points पे सपोज आपके ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, तो ये 4 points आप लिख दो, आपके मार्क्स कंफर्म है. ठीक है. बट ये 4 points आप सिर्फ ये पॉइंट अगर समझोगे ना, अगर आपने ये पॉइंट याद रख लिया जो इसकी हेडिंग है एंड मैं जो बोल रही हूँ आपने वो समझ लिया ना, देन यू कैन इजीली ड्राफ्ट इसका आंसर, यू कैन इजीली राइट इट इन योर बुक्स. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट इज कि planning provides standard for controlling. Now आपको ये क्वेश्चन आएगा कि what do you mean by that कि standard controlling क्या है, इसका मतलब है. सपोज आपने प्लान किया है. ठीक है. आपने प्लान किया है कि हम वही सेम वाला लेते हैं कि आपने प्लान किया है कि मुझे 10,000 यूनिट्स बेचने हैं, लेकिन आपने बेचे सिर्फ 8,000. ठीक है. आपकी प्लानिंग क्या थी कि मैं 10,000 ही बेचूंगा. आपने सोचा था कि मैं ये 10,000 का 10,000 ही बेचूंगा, लेकिन बिके आपने कितने? 8,000. 2,000 किधर गए? वेयर इज आपके 2,000? ठीक है. तो ये 2,000 आपको कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों में हेल्प करता है. ठीक है. प्लान था 10,000. अब कंट्रोलिंग के पास एक स्टैंडर्ड है कि एनीथिंग दैट इज अबव 10,000, वाओ, वेल एंड गुड भाई, एक्सेस पे हम लोग मस्त कर रहे हैं. फिर तो अगर इफ इट्स इन अ डेफिशिएंट, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, हमारा धंधा ही नहीं चल रहा है, ये कैसा है. ठीक है. सो अगेन इट इज प्रोवाइडिंग यू अ स्टैंडर्ड कि आप कंट्रोल भी अच्छे से कर रहे हो. ठीक है. आपके आपके कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड है. ठीक है. एंड सिंस प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपके पास वेल इन एडवांस ही होता है. ठीक है. नाउ इफ ये स्टैंडर्ड्स वेल इन एडवांस मैनेजर्स के लिए सेट नहीं होता है, ठीक है, सपोज एक देयर इज नो प्लान, आप लोग बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू, आप एकदम स्पॉन्टेनियस चल रहे हो, बट देयर इज नो, यू नो, देयर इज नो प्राइमरी प्लान इन हैंड. ठीक है. देन देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इज दिस गुड, इज दिस बैड. एक स्टैंडर्ड ही नहीं है. देयर इज नो, यू नो, ऑब्जेक्टिव. आपको कुछ है ही नहीं कि क्या ही चल रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपने समझ लिया होगा कि प्लानिंग प्रोवाइड्स अ कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. ठीक है. आप प्लीज आप ये नोट डाउन करो, आप सिर्फ पॉइंट्स याद रखो, बहुत ही इजी इजी पॉइंट्स, आप सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखोगे, देन आई डोंट थिंक के अगर आपने सिर्फ पॉइंट समझ लिया, आपने मेरी बातें समझ ली, आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं. एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप इतना भी लिख दोगे ना, 100 में से 100 आपको मिल जाएंगे, 100 में से 100, आई एम नॉट इवन किडिंग, 100 आउट ऑफ 100. ठीक है. फिर सेकंड है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. ना फर्स्ट पॉइंट में हम समझ रहे थे कि हाउ
planning is very integral for हमारा controlling का function. But now we'll understand how planning as a function, it will make no sense, it will have no impact अगर controlling उसके साथ है ही नहीं. ठीक है, like I said, याद रखो, there are twins, inseparable twins. ठीक है, एक एक अगर हाथ हिलाता है तो दूसरा भी हाथ हिलाता है, अगर एक पैर हिलाता है तो दूसरा पैर हिलाता है. ठीक है, सपोज आपने ये प्लानिंग वैनिंग कर दी कि हाँ 10,000 हम 10,000 बेचेंगे बेचेंगे 10,000. ठीक है, आपने बोला कि दिस इज माई टारगेट फॉर द नेक्स्ट 3 months. 3 महीने हो गए, आपने सिर्फ 8,000 के, बट दिस नो कंट्रोलिंग फंक्शन. आप कुछ असेस ही नहीं कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि हाँ कुछ हुआ है कि नहीं. ये प्लानिंग का क्या ही मतलब, आप काम कर रहे हो लेकिन कुछ इवैल्यूएशन ही नहीं है, आप कुछ असेस ही नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो आप फिगर आउट कैसे करोगे कि वेदर आपका ये प्लान इफेक्टिव है, क्या ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है. ठीक है, सो कंट्रोलिंग जो है वो मॉनिटर करता है कि आपके प्लान का प्रोग्रेस कितना है, वो मेजर करता है. ठीक है, वो डेविएशन, अगर कोई इश्यू आया है वो उसको डिस्कवर करता है, वो एक करेक्टिव मेजर, वो कोई भी प्रिवेंटिव और करेक्टिव जो भी मेजर है वो उसे एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, वो उसे इनिशिएट करता है. कि मेन है उसका, कंट्रोलिंग का मेन है कि ये जो प्लान है, जो भी प्राइमरी फंक्शन में प्लान बना है, उसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए. ठीक है, thus planning without controlling is completely meaningless. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, that planning provides standards for controlling, and second, that planning without controlling is meaningless. Planning provides standard for controlling, and planning without controlling is meaningless. ठीक है, now third, this is a very interesting one. Okay, एक planning and controlling are both backwards and inward लिख sorry, backward and forward looking. ठीक है, आप बोलोगे कुछ चीज या फॉरवर्ड लुकिंग हो सकती है या तो बैकवर्ड लुकिंग होती है. हाउ इज इट लाइक बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग? लाइक it doesn't you know it doesn't make any sense, but it's okay, we'll make it make sense. Now controlling is backward looking because वो एक ऑडिट परफॉर्म करता है, वो एक पोस्ट मॉर्टम परफॉर्म करता है कि पास्ट में क्या हुआ है. ठीक है, इट्स लाइक एन ऑडिट और अ पोस्ट मॉर्टम के पास्ट में. सपोज आपने दो परफॉर्मेंसेस दी है, आपने दो सेल्स परफॉर्मेंस दी है, आप डोर टू डोर सेल्स में आपने 50 आपने डोर टू डोर सेल्स में लगाया है, आपने एक अच्छा एक सेलिब्रिटी लेके आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई है. ठीक है, नाउ कंट्रोलिंग क्या करेगा, वो देखेगा कि इसका क्या कुछ बेनिफिट हुआ, क्या इसका कोई फायदा हुआ. वो देखेगा कि ये जो आपने इतना हॉट शॉट आप सेलिब्रिटी लेके आए हो, क्या उसकी एड देखे, क्या उसके फैन बेस में कोई भी इन्फ्लुएंस हो के हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या ये जो हमने 50-200 डोर सेल्स में हमने एम्प्लॉय किए हैं, क्या ये कुछ काम के है, क्या ये कस्टमर लेके आ रहे हैं हमारे लिए. ठीक है, तो कंट्रोलिंग जो होता है वो चेक करता है कि वेदर ये जो प्लान आपने किया था कि हाँ ये 50 जो डोर टू डोर है, इनसे हम एटलीस्ट 20,000 तो यूनिट बिकवा देंगे, एटलीस्ट 20,000. बट आप देखोगे कि अरे ये कैसे ये क्या फुद्दू डोर टू डोर सेल्समैन है, इनसे 10,000 भी नहीं बिका, हम 20,000 की बातें कर रहे हैं. ठीक है, एंड ये कैसा सेलिब्रिटी आप लेके आए हो. ठीक है, हमको लगा कि इसकी फैन बेस देख के लोग आएंगे, इसे ही कोई नहीं देखता है, व्हाट द हेल. ठीक है, तो कंट्रोलिंग इसके लिए एक पोस्टमार्टम करता है. ठीक है, मैनेजर सपोज उसको जो भी प्रीवियस एक्टिविटीज है उसका उसके पास डेटा है. ठीक है, वो उसे देखेगा, वो स्टडी करेगा, वो देखेगा कि अरे ये जो डोर टू डोर सेल्समैन ये क्यों नहीं बेच पा रहे, वो डिविएशन देखेगा. ठीक है, वो देखेगा कि क्या है ये. ठीक है, तो ये हो गई बैकवर्ड एकदम प्लानिंग. ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड.
पूछोगे कि हाउ इज प्लानिंग बैकवर्ड्स, प्लानिंग तो भाई हम आगे के लिए करते हैं, यू नो, फोरसीन फ्यूचर के लिए करते हैं, हाउ इज इट लाइक बैकवर्ड? बिकॉज हम हिस्ट्री देखते हैं, एंड बाय हिस्ट्री आई मीन प्रीवियस डेटा, प्रीवियस कुछ महीने का, प्रीवियस वीक का, प्रीवियस ईयर का हम डेटा देखते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज अगेन इट इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक किसका फीडबैक? कंट्रोलिंग फंक्शन का फीडबैक। आप समझ रहे हो? आप रिलेट कर पा रही हो इन दोनों के बीच में क्या बोलने को चाह रही हूँ? दे आर बोथ फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड इन द सेंस कि वो दोनों ही, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। उन दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है, बट हाउ आर दे अगेन बैकवर्ड लुकिंग? दे आर बैकवर्ड लुकिंग इन द सेंस कि जो कंट्रोलिंग है वो इन्हीं पिछली हुई कुछ एक्टिविटीज का, पास्ट एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम करता है, वो चीजें रिकग्नाइज करता है, ठीक है। एंड प्लानिंग है वो जो चीजें ये रिकग्नाइज करता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस रह चुके हैं, वो मेक श्योर करता है। प्लानिंग मेक श्योर करता है कि ये चीज वापस ना हो, तो उस हिसाब से प्लान करता है कि वापस ऐसी चीजें ना हो, या कोई फीडबैक है उसके हिसाब से वो प्लानिंग करता है, ठीक है। नाउ हमने हमने समझ लिया कि बैकवर्ड लुकिंग कैसे है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज इट फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फॉरवर्ड क्यों? फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। आप फ्यूचर का फोरकास्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इन एडवांस अब प्लान कर रहे हो, आप पॉलिसीज बना रहे हो कि ये जितने भी आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो पाए, ये प्लानिंग। इसीलिए इट्स फॉरवर्ड लुकिंग। अगेन ऑर्गेनाइजेशन गोल ये सेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर और फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। नाउ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग इन द सेंस क्योंकि सिर्फ पास्ट का जो डेटा है या पास्ट एक्टिविटीज परफॉर्मेंस को वो सिर्फ कंपेयर ही नहीं करता है, सिर्फ उसका ही उतना काम नहीं है। वो इन्वॉल्व करता है कि जो डिविएशन होता है, कुछ भी होता है, उसके रीजंस क्या थे, ठीक है। वो मेजर्स इंप्लीमेंट करता है और वो सजेस्ट करता है कि ये मेजर लो कि ये आगे नहीं हो, फ्यूचर में ये सेम चीज वापस रिपीट ना हो, ठीक है। सो इसका मतलब, तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब, आप जब भी आपकी स्टेटमेंट अपनी आंसर बुक में लिखोगे, आप एक्सप्लेन करना कि व्हाई बोथ ऑफ देम दे आर बैकवर्ड थिंकिंग बोल रही हूँ, बैकवर्ड लुकिंग, एंड व्हाई दे आर फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। सो आपने कभी आधा मत लिख के आना, फिर वो पार्शियली करेक्ट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आधे मार्क्स ही मिलेंगे उसके, ठीक है। फोर्थ पे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव। अब ये मत सोचना कि मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सोच रही थी। Whereas controlling is evaluative. What do you understand by this? First thoughts. ठीक है। Planning is prescriptive how? हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था that planning is an intellectual process, it's a mental process, ठीक है। हाई IQ प्रोसेस है ये, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज जैसे कि थिंकिंग हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है। टू प्रिस्क्राइब, please make sure what kind of words I'm using, make sure that you please note what words I'm using. वो प्रिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, पर्टिकुलर प्लान या पर्टिकुलर पाथ, वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ हमको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। प्लानिंग बेसिकली हमें प्रिस्क्राइब करके दे रहा है कि हाँ ये दवाई वगैरह लेनी है आपको, ठीक है, ये आपका यही दवाई है, आपको ऑर्गेनाइजेशन चलानी, ये दवाई ले लो, ठीक है। नाउ कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड, वो इवेल्युएट करता है कि वेदर ये हम दवाई लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक है कि ये सिंपल ये फीवर की दवाई है, क्या है ये लेने लायक है, लेना चाहिए इसे हमें, ठीक है। सो प्लानिंग हमें दवाई देती है, हमें बोलती है कि चलो जाके ये दवाई लेके आओ। कंट्रोलिंग बोलते हैं कि यार खानी चाहिए ये दवाई, नहीं खानी चाहिए, लास्ट टाइम खाई थी उल्टी हो गई थी यार मेरे को ये दवाई खा के, ये वापस खानी चाहिए, वियर्ड, ठीक है। सो again planning intellectual process, it involves lot of thinking, comparison, और वो prescribe करता है particular course of action for achieving uh, organizational objectives. Controlling on the other hand,
वो इवेल्युएट करता है, चेक करता है वेदर द कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट। तो वो मेक श्योर, कंट्रोलिंग मेक श्योर करता है कि ये जो दवाई आपने ली है ये आप खाओगे कि नहीं। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि खानी चाहिए कि नहीं, खानी ही चाहिए और खानी ही है। तो वो मेक श्योर करता है कि ये दवाई वो बच्चा खा ही रहा है। ठीक है, सो थिंक ऑफ प्लानिंग एज योर डॉक्टर, उसने दवाई प्रिस्क्राइब की है। कंट्रोलिंग एज योर मम्मी के बेटा दवाई खानी है, अगर ठीक होना है, अगर स्ट्रांग बनना है तो खानी है। ओके, so to conclude, planning and controlling, they cannot be they cannot be separated. ठीक है, these two, they are supplementary functions, they support each other for successful implementation or execution of both functions. अगर एक चला गया तो दूसरे का महत्व या सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। ठीक है, प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग। तो आप ये एक याद कर लीजिए। मैं ये छोटा इधर लिख रही हूँ, बट आई एम जस्ट गोना पुट दिस के इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू कैन राइट दिस इन योर आंसर शीट। आप ये आंसर अपने लिख सकते हो, एंड मेक योर, अगेन, जितना आपने अभी तक लिखा है, जितने आप पॉइंट अभी दे रहे हो, क्रक्स दे रहे हो आप उन्हें, उनको एक अच्छा सा क्रक्स मिल जाएगा इससे। ठीक है, विच इज planning makes, okay, I think I should use another color for this. I think I'm going to use red. Planning makes controlling effective and efficient. I'm writing over myself now. ठीक है, comma, whereas controlling improves future planning. ठीक है, planning makes controlling effective and efficient. Controlling makes improves future planning. Now again, what were your points? हमारे points क्या क्या थे? पहला, planning provides a standard for controlling. Planning without control is meaningless. Planning and controlling are both forward and backward looking functions. Planning is prescriptive and controlling is evaluative. Cool. Controlling process. Now अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड कई बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हाँ, कई बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अगेन, पॉइंट्स याद रख लो, समझ लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, एंड देन आप अपने वर्ड्स में लिखो। अगर आप जितना अपने वर्ड्स में लिखते हो आपको उतना बेटर समझ आता है, आप उतना अच्छा लिखते हो। ये रट्टा मार के आप जाओगे, मोस्टली आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, ना आप समझोगे ना वो समझेगा। जो एग्जाम चेक करे ना वो समझेगा ना आप समझोगे। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ यू एंड इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, सो इट्स नॉट वर्थ इट। प्लीज आप ये समझ के जाओ। नाउ फर्स्ट, कंट्रोलिंग प्रोसेस। आपके ना देयर आर अ टोटल ऑफ 6 पॉइंट्स। ठीक है, आप अच्छे से याद रखो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप अच्छे से याद रखो। आपको ये बहुत ही, जो मैं स्टेटमेंट्स है, दे वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर मैं एक बार ही बोलूंगी तो। मैंने गलत यूज कर लिया ये तो। Setting up of standards. Now, what do you mean when I say the word standards? Targets, objectives, aims, maybe valid. Now, standards, they mean target. ठीक है, ये एक टारगेट है अगेंस्ट विच आपका जो परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको मेजर किया जाएगा, उससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन का एक बेसिस है।
ठीक है। और मैनेजर्स आर उनको ऐसे इनकरेज किया जाता है कि हाँ आप ये स्टैंडर्ड्स यूज करो, आप इन्हें कंसिडर करो। ठीक है। अगेन इन स्टैंडर्ड्स के लिए भी कुछ है कि ये जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए दे शुड बी अचीवेबल। ठीक है। दे शुड बी टू हाई और टू लो, अचीवेबल। एक बहुत ही ऐसा इक्विलिब्रियम वाला बैलेंस आपको हिट करना पड़ेगा। अगर टू हाई है, कोई हिट ही नहीं कर पा रहा है, सब ऐसे एकदम लो मोटिवेटेड होंगे। अगर ये बहुत इजी सा आपने दे दिया तो सभी हिट कर पा रहे, सबको ही अप्रेजल मिल रहा है, वियर्ड। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर अचीवेबल नहीं है, टू लो और टू हाई, देन देर आर ऑफ नो यूज। ठीक है। और ये जो आप स्टैंडर्ड्स, like I said, they should be achievable, and you should keep in mind that these standards should also, consider the optimal यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि ये जो स्टैंडर्ड्स आप सेट करो इसमें रिसोर्सेज भी अच्छे से एफिशिएंटली हम यूज कर पा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स को आप हमेशा एक मेजरेबल टर्म पे रखना, मेजरेबल टर्म। ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया है, हमने स्टैंडर्ड दिया है कि कॉस्ट रिडक्शन करनी है आपको बाय 5%, या आपको सेल्स टारगेट है 10,000 यूनिट्स। ठीक है। वैसे सारे, सपोज अगर कोई ऐसा मार्केटिंग फंक्शन है तो आपको बोला गया है कि मार्केट शेयर बढ़ाना है बाय 10% विद इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, आपको ये बोल दिया गया है। ठीक है। तो आपको अचीवेबल, मेजरेबल, वेर ऐसे स्टैंडर्ड्स दी जाते हैं जिसमें आप जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है आप उसे भी अच्छे से ही यूज कर पा रहे हो। ओके। फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेकेंड आपका आएगा measuring of performance. Now you'll say, what performance? Dance performance? No. ठीक है। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ ये सब होना तो चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के आपके पास डेटा आएगा, आपको आएगा कि हाँ आपने जो बोला था उसके आप देख लो ये सब हुआ है, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, अपना है ये सब हो गया है। ठीक है। नाउ ये जो परफॉर्मेंस है इट नीड्स टू बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड अ रिलायबल मैनर। ठीक है। इसको चेक करने के बहुत तरीके हैं। हम एक मेजरेबल तरीका, सपोज अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसे आपको ऐसे हमने न्यूमेरिकल या मेजरेबल यूनिट्स में दिया, तो उसके लिए यू कैन एम्प्लॉय अकाउंटिंग रेशियो चेक करने के लिए कि हाँ जो हमने किया था उसका वो कुछ हुआ है कि नहीं, या आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकल सकती है उसकी, सैंपल चेकिंग हो सकता है। ठीक है। सपोज कंपनी का परफॉर्मेंस हमें रिव्यू करना है, ये ऑब्जेक्टिव हमें दिया था, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एन अकाउंटिंग रेशियो कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ठीक है। मेजरमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने दिया था, बाय काउंटिंग हम टैली करके देखेंगे कि कितने यूनिट बिके अभी तक। ठीक है। हम मेजर करेंगे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस। ठीक है। अगर हमको किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है तो हम उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगेंगे फ्रॉम द उसका मैनेजर या उसका सुपीरियर। ठीक है। तो दिस इज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज वेरी इजी। स्टैंडर्ड्स है हमारे पास रियल परफॉर्मेंस का डेटा सेट है, उससे बस हमें एक ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ वी हैव कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है। परफॉर्मेंस का डेटा है हमारे पास, स्टैंडर्ड्स हैं, हमने बहुत ऑब्जेक्टिवली से स्टैंडर्ड्स को हमने बनाए हैं। ठीक है। तो हम अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो मैनेजर होगा वो ये कंपेयर करेगा। ठीक है। अगर इन दोनों अच्छे से टैली हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, देन कंट्रोलिंग का फंक्शन इधर खत्म हो जाता है कि ओके चलो ठीक है आगे बढ़ो। बट अगर इफ देर इज सम मिसमैच, और टू बी मोर प्रिसाइज, लेट्स से
देयर इज अ डिविएशन, देन वो मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस डिविएशन, कितना ही डिविएशन होगा कि बहुत ही नॉमिनल सा है कि ये बहुत डिग्री तक गया है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ही डिविएशन हो गया यार ये तो, ठीक है। अगर बहुत माइनर है तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिविएशन है तो एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि हमारे पास अभी तक परफॉर्मेंस आ गया, हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए थे, हमारे स्टैंडर्ड थे, परफॉर्मेंस था, दोनों को कंपेयर कर लिया। आर फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू बी एनालाइजिंग द डिविएशंस, ठीक है। नाउ डिविएशन बहुत सारे हो सकते हैं एट एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ डिविएशंस, ठीक है। बहुत इतने सारे डिविएशन, टॉप मैनेजमेंट को ऑलरेडी इतना काम होता, अब इतना सब लेके जाओगे, ये भी लेके जाओगे इतू पितू से, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ डिविएशन है, ठीक है, कि इस एक्सटेंट के बियॉन्ड वाले ही शुड बी कम, नो इट शुड जस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स, इफ नॉट देन आप अपने में ही हैंडल करो, उसे रिजॉल्व करके रख दो, ठीक है। तो इसकी दो कैटेगरीज बनी है ऑफ दीज डिविएशन, देयर आर टू कैटेगरीज, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेते हैं कैटेगरीज। सबसे पहले है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। ये दो कैटेगरी, जो हमने दो कैटेगरीज है, एक है कि देर आर इनसिग्निफिकेंट डिविएशंस, ठीक है, माइनर डिविएशन, और एक है बहुत ही अर्जेंट डिविएशन, इमीडिएट जिनको अटेंशन चाहिए होता है। दीज आर योर टू कैटेगरीज, ठीक है। एंड नाउ दीज टू कैटेगरीज मस्ट बी कंट्रोल्ड इन टू फॉलोइंग वेज, दीज टू वेज, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ वेज, आई डोंट हैव इनफ स्पेस क्योंकि मुझे इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू वेज, तो टेक्निक्स लिख देती हूँ इधर, टेक्निक्स, ठीक है, टू टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डिविएशन। हमारे पास दो टेक्निक है, दो वेज है कि जो ये हमारे पास अभी आ गए इनसिग्निफिकेंट और अर्जेंट केयर वाले, इसको हम दो तरीके से इसे हम एनालाइज करेंगे अभी। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, or you can just call it MBE, management by exception. Now critical point control, for critical point control, remember this: key areas, key focus areas, key focus areas, ठीक है। इट मीन्स कुछ की एरियाज होते हैं, आप उन पे ही फोकस करोगे, ठीक है। एंड अगर इन की एरियाज में कुछ डिविएशन आता है, देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली, एकदम एकदम प्रॉब्लम हुई कि ओ माय गॉड व्हाट्स द प्रॉब्लम, इसको सोल्यूशन कर देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अगर इन एरियाज में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन इट विल मोर और लेस इम्पैक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज, ठीक है। सपोज हमें आया है कि देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, 10 रुपए से देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड अलोंग विद दैट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए बढ़ गए हैं, ठीक है। देन देयर इज के पोस्टल कॉस्ट में भी 20 रुपए बढ़ गए, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। लोग बोलेंगे, जो मैनेजर होगा वो बोलेंगे कि तुम अपने ये 20 रुपए वाले पोस्टल कॉस्ट को हटाओ, क्योंकि ओवर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल ये पोस्टल कॉस्ट पे। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट पे जो बढ़ गया है, उसमें द ऑर्गेनाइजेशन हैज कंट्रोल, एंड इट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट कि बहुत ही हेवीली इम्पैक्ट करेगा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये की एरियाज पे वो इमीडिएटली अटेंड करेंगे, क्योंकि इसमें जो फ्यूचर रेवेन्यू है, प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, ये इन हर चीज को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। पोस्टल कॉस्ट वेयरएज वो बहुत ही कभी कभी ऐसा सब होता है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अर्जेंट है, ठीक है। तो इसके KRAs, की फोकस एरियाज, फिर है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें आप एक समझ लो,
सपोज आपका ये मैनेजर है। अब मैनेजर के क्या है, 2 हाथ है। उसको हमने इतनी सारी डेविएशंस दे रखी है, इतनी सारी, माय गॉड। और ये बहुत ट्राई करता है कि ये इन सबको कंटेन कर पाए, सबको संभाल पाए। लेकिन देर इज अ थिंग इन मैनेजमेंट कॉल्ड अ पर्सन हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। वो जब इन सब में फोकस कर रहा है, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ही इज अनेबल टू कंट्रोल, ही इज अनेबल टू कंट्रोल एनीथिंग। कुछ वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन सपोज उसके पास इतनी सारी जो, सॉरी, उसके पास जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें से लेट्स से this many, they are just minute minor deviations। ठीक है, बहुत ही छोटू मोटू है। इसको he can entirely avoid them and तो कुछ ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। So now he only has a few to control। ठीक है, who are actually key focus area वाले, जिनको actually immediate और या urgent knowledge या urgently उसे attend करना पड़ेगा। ठीक है, दैट वे वो इन अननेसेसरी डिविएशंस पे ही इज नॉट वेस्टिंग हिज एनर्जी, ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम के इन सब का आना चाहिए। रादर ही इज गना कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशंस जो हाई डिग्री के हैं, उन पे ज्यादा इम्पैक्ट है, उनकी लाइकलीहुड कम हो सकती है लेकिन इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा है। ठीक है, सपोज इसने बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 2 रुपीज बढ़ चुकी है। नाउ उतना तक ही कैन हैंडल, उतना तक ही कैन से कि हाँ यार इट्स नॉट वर्थ इट, इतना ही है, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 रुपए से 5 रुपए हो गई, देन दैट इज अ कंसर्न, क्योंकि वो एक उसे रेंज दिया गया है। अगर वो उस रेंज के बियॉन्ड जा रही है, देन दैट इज अ कंसर्न फॉर हिम। उसको उस पे इशू आएगा, उसको उस पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसको सब दिया होता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ही हैज दैट नॉलेज, दैट एक्सेप्शन के ओके दीज आई कैन अवॉइड, दीज आई कांट अवॉइड, दीज मेरे को हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिविएशन के काफी कॉजेज हो सकते हैं। इट कुड बी some fault in machinery, it could be inefficient staff, it could be under misunderstanding of standards or understating or overstating the standards। ठीक है, तो एक प्रॉपरली एग्जैक्ट एक्यूरेट डिविएशन को पॉइंट आउट करना, फाइंड आउट करना बहुत ही एसेंशियल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडवांटेजेस और मेरिट्स भी है, अगेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, डोंट राइट सीपीसी, दे डोंट कॉल इट सीपीसी, बट मुझे ऐसे याद आता है। सो सीपीसी यू कैन सी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड एमबीई, उसके मेरिट्स क्या है। लाइक इसका मैंने जैसे बोला कि टाइम एंड एफर्ट बचता है, सो यू कैन राइट दैट कि मैनेजर्स का टाइम एंड एफर्ट, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, फोकसेस, सिंस इतना टाइम एंड एफर्ट बच रहा है, इट फोकसेस देयर अटेंशन ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, एंड अगर सपोज ये माइनर है डिविएशन, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को ये डेलीगेट कर देगा, बोलेगा कि यार मेरे को नहीं करना है ये, तुम लोग ही करो, मुझसे नहीं होने वाला। मैं मुझसे तो हो जाएगा बट बस टाइम नहीं है। ठीक है, सो ये रूटीन प्रॉब्लम वो नहीं वेस्ट करेगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को ये सब दे देगा। ठीक है, एक क्रिटिकल और सिंपल प्रॉब्लम के बीच वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। ठीक है, तो इन सबको याद रखो, मैं जितना भी बोला है उसे आप प्लीज नोट डाउन कर लो कि यू कैन राइट दैट इन योर आंसर, ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, फिफ्थ इज टेकिंग करेक्टिव मेजर। ना हमने एनालाइज कर दिया कि हाँ डिविएशन है। ठीक है, हमने ये भी पता लगा दिया कि वो डिविएशन कितने डिग्री का है, क्या इसको अभी अटेंशन की जरूरत है, क्या इसे अटेंशन की जरूरत नहीं है। सपोज हमने बोला कि हाँ अटेंशन की जरूरत है, इसको हमें रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, सो देन हम रीजन ढूंढेंगे कि ये डिविएशन हुआ क्यों, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, हम उस डिविएशन की हिस्ट्री समझेंगे, हम उस डिविएशन का नेचर समझेंगे। ठीक है, एंड जो मैनेजर होगा ही विल टेक, ये इन सब को समझने के बाद ही विल टेक सर्टेन मेजर्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक मतलब
बैक टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, अब व्हाट कुड दीज मेजर्स बी? ठीक है, मैं तो लिख देती हूँ व्हाट कुड दीज measures be. First of this measure could be कि let the situation remain the same. ठीक है, कि जैसा है जैसा चलने दो, इतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा, नॉट दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट, इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है, काफी इतू पितू था, दिस डेविएशन इज, फेंक दो इसे, हम इसको हम भाव नहीं देंगे इसे। ठीक है, फर्स्ट इट कुड बी दैट अप्रोच, आप वो अप्रोच ले सकते हो इफ इट्स नॉट दैट मच। ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिजाइन और reframe plans और strategies। ठीक है, line them with present day business environment। ठीक है, सपोज आपके प्लान एंड स्ट्रेटजीज आपके प्लान के हिसाब से यू हैव क्रिएटेड देम, यू हैव एम्प्लॉयड देम। ठीक है, नाउ सपोज दे आर in some situation they are या तो understated या तो overstated, given जो current या present day business environment के साथ उसके साथ वो match नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इन्हीं strategies इन्हीं plans को आप वापस से reframe करते हो, आप redesign करते हो, you put that under development to make sure कि ये अच्छे से align कर रहे हैं आजकल के जो business का environment है, आजकल business कैसा function कर रहा है उसके हिसाब से, so that ये organization के लिए at the end of it turns out to be profitable, it turns out to be effective। ठीक है, taking लिख देती हूँ इधर, taking corrective measures to improve taking corrective measures to improve the performance so that ही लिखना भूल गई, so that in future it matches the plan। ठीक है, now generally managers जो measures लेते हैं to improve the performance such as अगर एम्प्लॉय के स्किल में कोई डेविएशन है तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना। ठीक है, इफ देर इज इनसफिशिएंट परफॉर्मेंस, सपोज कोई मशीन है एंड उसके रिपेयर में ही इतना डिले चल रहा है। ठीक है, डिले क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो वर्कर्स है वो थोड़े लेजी है या केयरलेस है। ठीक है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई करके तेरी नौकरी खा जाऊंगा। ठीक है, लाइक दैट। Now the revision of these standards, they are called downward revision, ऐसा जब so होता है, because the standards are reduced। जो suppose standard is at this point, लेकिन reality में काम तो इधर ही चल रहा है। ठीक है, तो हम downward आ रहे हैं ना, so this is called downward revision। मेरी handwriting थोड़ी बुरी है, I'm really sorry, you have to bear with me like that। ठीक है, एंड अगर सपोज परफॉर्मेंस ही इधर है, स्टैंडर्ड हमने काफी नीचे रख दिया और हम ऊपर जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अपवर्ड रिविजन। ठीक है, ठीक है, सो दैट कि ये जो प्लान है दे आर सेट एट हाई रेट सो दैट दे मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, द मैनेजर, एक मैनेजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है when they are taking corrective measure that they must find the root cause of the deviation and try to remove that cause।
Now next is sixth, our final wala is feedback in controlling. ठीक है. Now controlling function इधर बस आप corrective measure लेते हो, it does not end at that. ठीक है. After suggesting these corrective function, एक feedback report is prepared. Now feedback it's a list of what? List of reasons for deviation. Deviation of what? Deviation of plans or for inefficiency. ठीक है. Now feedback report उधर लिख देती हूँ. Feedback report ठीक है. Feedback report is basically a list of the reasons that caused the deviation. Apart from that, deviation of plans or inefficiency in overall working organization का कैसा है, along with reasons specify किया जाता है कि ये जब हमने ये corrective measure लिया तो इसके बाद क्या क्या होगा. ठीक है. So you are back to square one. ठीक है. क्योंकि after you take that feedback या after आपने फीडबैक लिया, आप यू चेक बैक इन दैट कि हाँ ये इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं. सो व्हेन यू ड्रॉ दैट, सपोज आपने इधर सबसे पहले रखा है कि आपने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर आता है आपका परफॉर्मेंस, फिर आता है आपका कंपैरिजन, फिर आता है आपका एनालाइजिंग द डिविएशन, फिर आता है करेक्टिव मेजर्स. मैं इधर मेजर्स छोटा सा ही लिख रही हूँ. फिर आता है आपका फीडबैक इन कंट्रोलिंग. सो सपोज फीडबैक आई, आपके पास फीडबैक रिपोर्ट है, सो यू कैन चेक बैक इन के वेदर ये जो आपने मेजर लिए हैं क्या ये इफेक्टिव थे कि नहीं, क्या इनका कुछ काम आया कि नहीं, क्या ये कुछ भी इसका अच्छा हुआ कि नहीं. ठीक है. तो ये सब होने के बाद वापस से उस फीडबैक में स्टैंडर्ड्स हो गए, वापस से आप इस लूप में चढ़ जाओगे. ठीक है. सो आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट. ठीक है. लूप. And I think with that we end controlling का chapter. ठीक है. So I'm gonna go through a quick revision. ठीक है. First meaning, controlling का meaning क्या है? It means the comparison of actual output with the planned output to find out the reasons for deviation and taking corrective measures to stop this deviation in future. ठीक है. Nature क्या है? First, it is goal oriented. It is all pervasive function and it is a continuous function. ठीक है. What is the importance of controlling? Importance is it helps in achieving organization goals. It judges the accuracy of standards. It makes efficient use of resource. It improves your employees' motivation. It ensures order and discipline. And last, facilitates coordination in action. Now, correlation or the relationship between planning and controlling. ठीक है. First, their nature and concept. Planning and controlling, they are both interdependent and interlinked. ठीक है. One cannot exist without the other. Planning will, it will make no sense if there's no control, and planning basically sets the standards for controlling. Planning and controlling, they are both backward and forward looking functions. Planning is prescriptive, whereas controlling is evaluative. Controlling process, main steps, there are 6 main steps. First is you set up standards, then you
measure your performance. You compare that, there's a comparison between your standards against your performance. Then in case of any deviation, you analyze that. After analysis, you take corrective measures, then feedback and controlling, and then back to square one, you go back to standards. I hope you like this video. This is the first video on my channel. If you have any doubts, you can just drop them in the comment section below. I will make sure that I get back to you and मैं आपको अच्छे से ही आंसर कर पाऊँ. ठीक है. एंड अगर आपको बाकी फंक्शंस का भी चाहिए, प्लीज आप बोलो मुझे कि व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट. इफ यू वांट अ डाउट सेशन, हम वो भी कर सकते हैं. आई कैन कीप अ लाइव सेशन. एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो. If you feel that I was lacking anywhere, you can easily tell me that. Again, comment section में आप बोल दो. It would be really nice if you would like, share, comment and subscribe to my channel. This was my first attempt at it, but I will make sure कि मैं जो भी वीडियोस बनाओ, दे आर इंटरेक्टिव, दे आर फन एंड आपको आसानी से समझ आए. बेसिकली आई एम गोना मेक इट वेरी बोथ स्पेसिफिक. एंड okay, so a little bit about me. My name is Ananya P. I'm not telling you my surname, but Ananya. My surname initial is P. I am currently in my second year of undergraduation. I got 91.8% in my boards. And I also come from a commerce background. I'm currently pursuing BBA. So please, if you even want some BBA related stuff, you can drop that in the comment section below. I'll make sure I'll help you out. I'm still, kind of figuring out what I want my channel to be about. So if you have any ideas, if you have like doubts, or if you're interested in any topics, again, you can drop it. And I think I'll end the video now. Bye bye. Please like, share, and subscribe. I'm so awkward doing this. Oh.